Hello students, welcome to Crack Grade B online learning platform. Today we have special guest Miss Ruti Vats with us. She has cracked IRD Assistant Manager 2023 exam. So first of all, many congratulations Ruti for this great achievement. And Thank today you. we will know her journey that how she has prepared. She has completed LLB, and after that she has prepared for the UPSC, and she has appeared in other regulatory body exam. So we will know detailed journey from her. So Shruti, from LLB to regulatory body, what was the reason behind this? So, sir, after 2018, after when I'd completed my BBA LLB, I was into litigation practice for 2 years. Then after COVID came, courts were anyway closed, so I decided that I'll go for UPSC preparation. My father also had this idea that I should go for UPSC, so I decided to study then. UPSC, sir, I gave my 3 attempts there. Thereafter, in 2023, I decided to move on to Plan B, and that is how I came to give this regulatory body examinations. So what other exams you appeared before the IRDA? So my initial target and main target was RBI. So I was studying for that, and because the pattern was same, so I decided to apply for each and every exam that came through IBPS. So, sir, I applied for IFSCA, then SEBI legal I gave, and then also sir ECGC, IRDI, and RBI, sir. So, what was your performance in other exams like SEBI Legal that was relevant to your graduation, and IFSCA and ECGC? So, and RBI also. What was your performance in these exams? So, sir, in RBI, I missed the logical reasoning cutoff. So I couldn't make it through. Although my final score was much above the cutoff, but then the logical reasoning was lacking. And sir, in IFSCA and SEBI legal, I reached till stage 2. And in ECGC, I got till the stage of interview, though I didn't give the interview, but I was there, and that's the IRDI. So, I think IRDA, this exam happened just before the RBI exam, phase one. That's right. Yes. So Yeah. after the result, as the RBI result was out and you could not make into the list of phase two candidates, means those who are qualified for the phase two. So how did you motivate yourself that you should go for a IRDA? Actually, when you have some dream and you are not able to achieve that, and it really demotivate everyone. I mean, even I am there if I am targeting some exams. You said RBI was your main goal. Then how did you motivate in this situation? तो मेन तो यूपीएससी था। और यूपीएससी की साइकिल ऐसी है कि जितना फेलियर उसमें देखने को मिलता है उसके बाद से बाकी चीजें नॉर्मल लगती हैं। आरबीआई का नॉर्मल नहीं था क्योंकि बहुत महीनों से प्रैक्टिस में कर रही थी उसकी। बट सर मतलब माय आइडिया वाज नॉट दिस कि मैं एक ही से स्टिक करूंगी या एक ही मेरा रहेगा। माय आइडिया वाज कि अब मैंने यूपीएससी रोक दिया है तो दिस ईयर आई हैव टू मेक थ्रू एनी ऑफ द एग्जाम। तो सर मैं दे रही थी और मेरा आइडिया ये था कि अगले 6 महीने 7 महीने जो जो एग्जाम आएगा मुझे वो देना है, अपना फाइनल अब इसमें देना है। मतलब आई डेंट वांट टू गेट स्टक इन दिस एग्जाम प्रेपरेशन जर्नी एनी लॉन्गर। सो सर वो कुछ टाइम मैंने रेगुलेटरी बॉडीज के लिए दिया। तो जैसे जैसे आ रहे थे मुझे पता था फेलियर आएगा, वो आते ही आते हैं। तो फेलियर से ही मतलब वो तो अच्छा था कि आईआरडीआई का एकदम तब आने वाला था, तो वो इनफैक्ट मोटिवेशन की तरह काम किया। तो जैसे ही पता लगा कि नहीं हुआ है तो मेरे को ये पता था कुछ टाइम है मेरे पास और इतना ही टाइम बाकी एस्पिरेंट्स के पास है, तो आई हैड टू मेक यूज ऑफ दैट। तो जैसे ही मेरा आरबीआई हुआ तो मुझे ये पता था मैं थोड़ा बॉर्डर पे हो सकती हूँ। तो मैंने फिर सीधा आईआरडीआई का शुरू कर दिया। रिजल्ट आ जाएगा अच्छा, नहीं आएगा तब अच्छा। तो आईआरडीआई का मैंने एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़नी शुरू कर दी थी सर। उसका थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था, थोड़ा नहीं वैसे काफी क्लियर था क्योंकि Mhm. मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए थे फेज 1 में। तो मैंने फिर उसकी फटाफट तैयारी शुरू कर दी थी। Okay, so, what was your major source for the phase one? As there are four sections,
40 question each, 90 minutes are there. Many students are not able to manage the each section because you have to clear the sectional cutoff of each section and 25% marks in each section. So how did you manage the time and what were your major source of preparation for this? तो इनका ऐसा कोई मेजर सोर्स नहीं था। तो द आइडिया इन फेज वन इज टू डाइवर्सिफाई। तो जितना लेवल ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी देख सकते हो, उतना करना चाहिए। हार्ड के कुछ देने चाहिए, मीडियम लेवल का कुछ देना चाहिए, इजी लेवल के कुछ देने चाहिए। तो ऐसा ही मैंने किया था। तो मॉक्स मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे हर एक सेक्शन के। सो फॉर इंग्लिश सर थोड़ा क्लैरिटी में था, बट मेरे को टाइम वाली चीज थोड़ी मैप करनी थी, तो मैंने वो भी दिए थे मॉक्स। क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग आई थिंक आरबीआई से बेटर कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो चीज था। तो मैंने आईआरडीआई के लिए उसके टाइम के हिसाब से फिर मॉक्स प्रैक्टिस करे। आंसर जीए मेरा आरबीआई में करियर अफेयर्स क्लाउड क्या है, आई डोंट, अफेयर्स क्लाउड आई थिंक, पॉकेट पीडीएफ आता है उनका। तो वो मैंने किया था, बार बार ही मैंने वो पढ़ा। एट द सेम टाइम मैं वीकली क्विजेस देखा करती थी, तो वो वीडियो के थ्रू अलग हो जाता था, तो किसी भी प्लेटफॉर्म की उठा सकता है। तो वीकली मैंने वो देखे पीडीएफ, फिर वो बार बार ही रिवाइज करे थे सर। डेली भी कभी टाइम मिलता था, और कहीं अगर दूसरी चीजों में मन नहीं लग रहा है तो देन आई वुड वॉच दोज डेली वीडियोस करंट अफेयर्स की। तो जरूरी नहीं आप उसको भी रिवाइज करो, बट जस्ट दैट तुम सुन रहे हो, तुम मतलब मटेरियल ले रहे हो। एंड व्हेन इट कम्स टू जीए, जितना फैक्चुअल इनटेक हो उतना बेटर होता है, और जितना रिविजन हो उतना सही रहता है। तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी सर फेज वन के तो लिए। आईआरडी में जो जीए था और एक आपने आरबीआई का अटेम्प्ट दिया, तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन? सो ऑनेस्टली मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, बट आई थिंक सेम ही लेवल का होता है। जीए ऑलमोस्ट सेम होता है इन द सेंस दैट या तो तुम्हें पता है या नहीं पता है। तो इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन जीए 5 या 10 मिनट का रहता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो फटाफट करो, नहीं आता छोड़ो, आगे बढ़ो। आईआरडीआई में भी यही करा, फटाफट जीए में जितने समझ आए उतने मार्क करें, और फिर सर दूसरे सेक्शंस करें, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइम नहीं था। तो इसलिए फटाफट बाकी जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो वो करे थे, क्योंकि उस टाइम क्लैरिटी भी आई थिंक नहीं थी कि सेक्शनल कट ऑफ रहेगा नहीं रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ रहेगा जो रहेगा, बस करते जाना था सर। Okay, okay. Now comes to the phase two part. So, after RBI result, you started preparing for this phase two preparation. You said कि annual report आपने पढ़नी start कर दी थी. तो so what was the main source of your preparation, as management was similar to RBI and insurance and economics and social issue impacting insurance, that was different. So how did you prepare these two subjects? सर फॉर दिस व्हाट आई डिड वाज, मैंने सिलेबस की बहुत सारी कॉपीज निकाल ली थी। तो मैंने एक अपने बोर्ड पे लगाती थी डेस्क के पास, एक मेरे पास हाथ में हमेशा रहती थी रेडी रेफरेंस के लिए, और हर मटेरियल के साथ मैं रखा करती थी सिलेबस, कि मुझे ये चीजें कवर करनी है अपने मटेरियल से। तो सर एनुअल रिपोर्ट थी। एनुअल रिपोर्ट बेसिकली मैंने सारी नहीं पढ़ी है, नोबडी शुड रीड इट एंटायरली, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए डेटा पॉइंट्स निकालने होते हैं सर। सो माय आइडिया, मैं ओवरऑल इंश्योरेंस के लिए 30 डेटा पॉइंट्स रखूंगी अपने पास। वो 30 डेटा पॉइंट्स अगेन एंड अगेन आई रिवाइज, और वो कहीं ना कहीं इनफैक्ट हर आंसर में इंश्योरेंस के मेरे वो यूज हो जाएंगे। सर इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट पेपर 3 था, तो उसमें मैक्सिमम मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने में कितना डेटा पॉइंट यूज होगा, तो उसके लिए मैंने 30 अपनी डेटा पॉइंट बना लिया था, और उसके बियॉन्ड मैं नहीं देखा करती थी, क्योंकि देन इट्स अ यूजलेस कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। तो मैंने वो एक लिस्ट बनाई थी सर। एंड सर वो लिस्ट मैंने इंश्योरेंस के लिए जो मेजर सब्जेक्ट था वो कंटेंट सर आपके कोर्स से आया था। सपना मैम उस टाइम क्लासेस लेती थी, सो हर क्लासेस वर वेरी हेल्पफुल सर। तो वो मटेरियल था, उस मटेरियल को पढ़ते ही मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना लेती थी सर। इनफैक्ट कई बार क्या होता था, इफ द क्लासेस वर इनफ तो मैं उसी में ही अपने शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, जस्ट टू वेरीफाई मैं कंटेंट पढ़ लेती थी, और उसी को रिवाइज करती थी सर बार बार। सर आई थिंक दिस वाज फॉर पेपर 3 मैनेजमेंट, एज यू सेड आरबीआई में कवर हो गया था, बट मैं आरबीआई के सोर्सेज को अगेन रेफर नहीं करती थी, उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लेती थी उसी टाइम। तो इनफैक्ट मेरे कई चीजों के जो नोट्स थे वो विद इन द सिलेबस बने हुए थे, साइड में बना दिया छोटा छोटा, मेजर ऑथर्स के नाम लिख दिए या कुछ लिख दिया, तो मैं वही बना लेती थी। और सर पेपर 1 वाज इंग्लिश, तो उसके लिए प्रैक्टिस यूपीएससी में हो गई थी। सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग
इंश्योरेंस वाज समवट सेम, बट वो इंश्योरेंस वाला एंगल थर्ड पेपर से इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो whenever you're रीडिंग, तो सर अगर आप पढ़ रहे हो कि इश्यूज क्या है किसी चीज के, तो उसी के साइमल्टेनियसली तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो एप्लीकेबिलिटी पढ़ते टाइम हमेशा तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। उसी के शॉर्ट नोट्स बना लो, उसी के सामने वही चीज लिख दो और उसी को रिवाइज करो। तो सर इट्स मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू आर रीडिंग द कंटेंट रादर देन क्रैमिंग इट, फॉर मी सर। एंड प्रैक्टिस कैसे की थी, कितने मॉक्स की प्रैक्टिस की थी? क्योंकि ये भी एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं एस्पिरेंट्स की, कितने मॉक्स हमें लिखने चाहिए बिफोर अपियरिंग इन द एग्जाम? क्योंकि आपको वहां पर वर्ड लिमिट भी रीच करनी है एंड टाइम भी मैनेज करना है, दोनों चीजें। सर पेपर 2 के लिए मैंने मॉक्स ऑनेस्टली ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे थे। यूपीएससी से थोड़ी आंसर राइटिंग रहती थी, तो वही बेसिक फॉर्मेट रहता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का, वो हम्म। फॉलो करते हैं। और जितना सिंपल रहे आंसर उतना बेटर होता है इसके लिए। उसी में ही तुम्हें डेटा पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं। उसी में फिर मैं कई बार न्यूज आर्टिकल्स पढ़ लेती थी, उसमें इफ पीएम मोदी हैज सेड समथिंग तो वो लिख देते थे। वही कुछ चेयरमैन ने आईआरडीआई के कुछ बोला है, या स्विस रे की रिपोर्ट आई है तो उसमें से कुछ डेटा पॉइंट्स ले लिए, तो वो मैंने एडिशनल वैल्यू एडिशन वहां से किया था। और सर मॉक्स के लिए अगेन सब मेरे दिमाग में ये था कि मैं नोट्स बनाऊंगी, उसी में मैं सोचूंगी कि मैं अगर री इंश्योरेंस पे आ जाता है तो क्या डायग्राम बनाऊंगी। हालांकि सर जो पेपर हमें मिला था, शीट जो मिली थी, उसमें लाइंस ऑलरेडी बनी हुई आई थी। तो द डिफिकल्टी वाज दैट कि जो डायग्राम्स सोचे थे, फ्लो चार्ट वगैरह, वो सब वहां पे अगर बनाकर आते तो वो अगेन थोड़ा टाइडी नहीं लगता आंसर में। तो आई डेंट डू दैट। तो जो चीजें उन्हीं बॉक्सेस में फिट हो जाती, मैंने सिर्फ वही वाले डायग्राम वहां बनाए, बाकी सारे आई मिस्ड। बाकी सर बाकी वही मैंने डायग्राम्स बनाए थे, उसमें मेहनत करी थी, जो ज्यादा हेल्प नहीं की। एंड देन कमिंग टू वर्ड लिमिट सर, वर्ड लिमिट मैंने स्टिक करी थी सर, क्योंकि टाइम नहीं था इस एग्जाम में। तुम थोड़ा सा सर उठा के भी नहीं देख सकते हो, सर उठा के देखोगे तुम्हारा वहीं खत्म हो जाएगा, मतलब टाइम, और मतलब आंसर पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वर्ड लिमिट आई स्टक टू इट, और मैंने वर्ड लिमिट के हिसाब से ही सारी चीजें करी। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग छोटी है, तो कई बार क्या होता था, आधे पेज से भी कम में आंसर है, पर आई डेंट केयर फॉर दैट, क्योंकि मेरे को बाकी क्वेश्चंस करने थे। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रादर देन एक अच्छे से लिख कर आओ, वो वाला चीज। तो सही ये थी, मैंने पेपर कंप्लीट करा था इसी वजह से। पेपर 3 में कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाई, बट सर मैंने ये किया था कि क्योंकि टाइम कम था, तो यू कैन नॉट फॉलो द इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंटेंट और कंक्लूजन वाली थिंग। सो आई रोट द पॉइंटर्स देयर। तो मैंने 10-11 पॉइंटर्स फटाफट फटाफट लिख दिए। सो इट्स इजियर फॉर इवन द चेकर कि वो आपके कंटेंट को इतना नहीं देखेगा। मतलब तुम अगर बकवास लिख कर आ रहे हो तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं। तो मैंने सीधे सीधे पॉइंटर्स लिखे कि ये है, ये है, ये है, अंडरलाइन कर दिया। आंसर आई कंप्लीटेड माय आंसर लाइक दैट। तो उसमें कंटेंट बहुत नहीं था, बट पॉइंटर्स थे अच्छे सर, कि मेरा अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट उन्हें पता लग जाए कि पता है, बस टाइम की वजह से रह गया। मीन्स वर्ड लिमिट से ज्यादा कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, कि आपने कंटेंट अच्छा लिखा है। तो मतलब जो वर्ड लिमिट वो लोग देते हैं, इट्स इनफ मेरे हिसाब से। तो हम्म। उसको जाने की जरूरत होती नहीं है, हम्म। मेरे मतलब मैंने ऑब्जर्व किया पेपर देते टाइम। तो वो वर्ड लिमिट काफी थी, और मतलब हो जा रहा था सर उससे, मतलब यू कैन जस्टिफाई द आंसर विद इन दैट। ओके ओके। सो there were three papers, so there was gap between the papers, or one by one you have to attempt? हाँ सर, वो लगातार ही थे, उन्होंने आई थिंक शीट्स दे दी थी हमें तीनों। तो वो हमें अपने हिसाब से फिर टाइम करना था। तो ओके। एक सो घंटा हो। हम्म, सो हाँ। हम डायग्राम बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। हाँ अंडरलाइन भी सर, क्योंकि वो ब्लैक लाइंस होती है, तो अंडरलाइन कर भी दो तो इट माइट नॉट बी विजिबल, तो थोड़ा सा लाइन के नीचे रख के अंडरलाइन कर दो, या बॉक्स बना दो उसके ऊपर, दैट हम्म। विल बी मोर। अंडरलाइनिंग वाली थोड़ी, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, प्लेन A4 साइज शीट मिलती थी उसमें, तो अंडरलाइन करना, डायग्राम बनाना इज वेरी इजी देयर। बट इस पेपर में थोड़ा वहां पे दिक्कत आई थी। बट वहां पे मतलब इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, एंड आई थिंक कर लेंगे लोग, समझ आ जाएगा। तो बस, नहीं भी होगा तो आई थिंक इट्स फाइन, वो टाइम वाला फैक्टर बहुत बड़ा है इसमें। हम्म। तो टिल द
राइटिंग कंटेंट विद इन दैट टाइम, मतलब वर्ड लिमिट और सारे वो कर रहे हो, इट इज गुड इनफ सर। एक मेजर इशू आता है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम में, तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं या अदर, जैसे कि टेलीग्राम है आज के टाइम पे मोस्ट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स का। तो वहाँ पे दूसरे कोचिंग्स या मतलब स्टूडेंट्स मल्टीपल सोर्स से पढ़ रहे होते हैं, तो डिड यू फॉलो दैट स्ट्रेटजी कि आपको भी मल्टीपल सोर्स से फॉलो करना है? एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो रहता है माइंड में, एक एस्पायरेंट के माइंड में हमेशा रहता है, तो इससे कैसे अवॉइड किया था, इफ पर और अदरवाइज यू हैव फॉलोड मल्टीपल सोर्स और नॉट? सब मल्टीपल सोर्सेज मैंने रेफर नहीं किए थे, हम्म। बट वो भी मतलब बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो सोर्स थे वही इतने लंबे थे। तो करियर अफेयर्स की अगर वो मैगजीन देखें तो पॉकेट पीडीएफ इज इटसेल्फ 120, और वो पॉकेट पीडीएफ है वो, हम्म। और तुम्हें 6 महीने का करना है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड लोग वो कैसे कर लेते हैं कि वो दूसरे सोर्स पे चले जाते हैं। बट मैंने ये नहीं फॉलो किया ऐसे ही सर। जो मटेरियल आपके थ्रू भी आया विच वाज इनफ, मतलब काफी था। और आई थिंक जब रिजल्ट आया था और पेपर आने वाला था, आई थिंक 15 दिन भी नहीं थे उसके बीच में। तो वो सवाल ही नहीं उठता था कि तुम ज्यादा सोर्सेज करो। माय आइडिया वाज दैट जो मैं पढ़ रही हूँ उसके फटाफट शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। वो नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है, उसके साथ साथ तुम्हें ये देखना है, कोड्स देखने हैं, डेटा पॉइंट देखना है, डायग्राम देखना है, उसमें टाइम जाता है। तो मतलब आई थिंक ये क्वेश्चन अराइज होना ही नहीं चाहिए। इफ यू आर जस्टिफाइंग वन सोर्स दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो मल्टीपल सोर्सेज वाली चीज नहीं आनी चाहिए किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के लिए, कि वो अगर एक मटेरियल पढ़ रहा है तो तुम 5 लाइनें अगर री इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हो, जस्ट हम्म। टेल योरसेल्फ, जस्टिफाई योरसेल्फ कि तुम अपने आप को वो समझा पाओ वो कॉन्सेप्ट, वो कर पा रहे हो। तो आई थिंक कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी होती है पेपर्स में। तो वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी रिफ्लेक्ट कर रही है पेपर में, तो यू आर गुड टू गो। जब एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ जाता है तो एक रिवीजन शेड्यूल बनाना होता है। तो एग्जाम से पहले लगभग कितना टाइम यू यूज टू स्पेंड ऑन योर प्रिपरेशन और फॉर रिवीजन? क्या शेड्यूल फॉलो किया था रिवीजन के लिए स्पेसिफिकली? सर रिवीजन मेरी ऐसे चलती थी कि जैसे आज अगर मैंने कोई नोट्स बनाए हैं तो मैं अगले दिन ही उसे रिवाइज करती थी। फिर उस दिन जो नोट्स बनाए उसको साथ में लेके मैं तीसरे दिन रिवाइज करती थी। और टाइम भी कम था तो सर मैं ऐसे ही क्यूमुलेटिवली रिवाइज करती थी। और वो शॉर्ट हम्म। नोट्स भी इसी शॉर्ट होते थे कि रिवीजन में भी ऐसा नहीं है कि मेरा आधा दिन रिवीजन में जा रहा है। तो बिकॉज दीज वर शॉर्ट नोट्स तो मैं फटाफट उसे उसी टाइम रिवाइज करके ही आगे बढ़ती थी सर। माय आइडिया वाज ऑलवेज दिस, जो मैंने कर लिया है वो मेरे को अच्छे से याद रहना चाहिए, rather than गोइंग आफ्टर न्यू मटेरियल या न्यू कंटेंट। वो मैं कर लूंगी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट आई ऑलरेडी डन। एक मेजर क्वेश्चन और जो एस्पायरेंट से पूछते हैं कि हैंड राइटिंग की कैसी होनी चाहिए एग्जाम में? तब मेरी हैंड राइटिंग आई थिंक एवरेज के भी थोड़ा सा नीचे ही होगी। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बट माय आई आइडिया थिंक वाज कि अच्छी होगी, दैट्स व्हाई यू आर ऑल इंडिया रैंक 2। सर मेरे को भी हैरानी है क्योंकि काफी लोग कहते थे राइटिंग अच्छी, पर मतलब इवन इन यूपीएससी जितने मैंने दिए हैं मॉक टेस्ट वगैरह, मेरे आते थे आंसर। सो आई कैन सेफली से सर कि कंटेंट मैटर करता है। तो इफ योर कंटेंट इज फाइन और एंड योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल तो चल जाएगा काम। तो मैं यही ट्राई करती थी सर। कर्सिव राइटिंग में ज्यादा खिचड़ी बन जाती है, तो उसके अलावा मैं ट्राई करती थी ब्लॉक लेटर्स में लिख कर आ जाऊं, तो उससे काम चल जाता था सर। थोड़ा मैंने वर्क भी करा था यूपीएससी के टाइम कि मैं और अच्छे से थोड़ा सा क्लैरिटी लाऊं। तो मैं अलग से बैठ के देखती थी कि ई को ऐसे लिख दूं, आर को ऐसे लिख दूं। तो वो सब छोटी छोटी चीजें तब करी थी, वो इसमें हेल्प करी। तो सर हाँ, हैंड राइटिंग में थोड़ा तब वर्क किया था, तो अभी नहीं करना पड़ा इतना। तो सर थोड़ा मैटर करती है बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी, और मतलब लेजिबल हो बस उतने एक्सटेंट तक। एक आजकल स्टूडेंट्स काफी टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपने आपको उससे कैसे दूर रखा, डिस्ट्रैक्शन से, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से स्पेसिफिकली? सब मैं ज्यादा वैसे सोशल मीडिया पर्सनालिटी मेरी है नहीं, बट जितना भी था मेरी कुछ कुछ फेजेस होते थे कि ज्यादा हो जाता था। तो एट दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू इज के मतलब ऑल इन है या ऑल आउट है। तो अगर तुम्हारा काम चल रहा है कि तुम बंद करके ही पूरा स्विच ऑफ करके मम्मी को दे दो, किसी ड्रॉर में रख दो, उसकी चाबी कहीं फेंक दो, ऐसे करके तुम्हारा काम चल रहा है, जस्ट गो फॉर। क्योंकि रेगुलेटरी एग्जामिनेशन सर ऐसे है
कि इसमें मतलब 4-5 महीने का तुम्हें बस चाहिए वो डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। तो वो दे सकते हो तो वो दे दो, मतलब ऑल इन करके। और अगर इफ इट मीन्स कीपिंग द फोन असाइड इन एनी वे पॉसिबल तो कर लेना चाहिए सर। बस मेरा आइडिया यही है। बाकी टाइम वेस्ट होता है सर, मतलब कई बारी शायद कई दिनों मैंने भी करा होगा, बट नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वो मतलब स्टॉप करना पड़ता है अगर इफ इट मीन्स डिलीटिंग एप्लीकेशंस, फोन को मतलब जिस भी तरीके से तुम उससे दूर रहोगे वो कर लेना चाहिए मुझे लगता है। मतलब एक्सट्रीम स्टेप्स ले लो, थोड़ा सा ही टाइम है। आईआरडीआई में तो मेंस मैटर करते हैं, मेंस तक पहुंच गए हो फिर तो मतलब रख ही दो साइड में फोन। So now comes to the interview part. So what was your experience with the board and how did you prepare for the interview? And you were having gap year. So definitely they have asked the question about the gap year. So how did you manage that? द गैप ईयर्स में से इंटरव्यू में नहीं पूछा था, एंड आई थिंक थोड़ा सा मतलब ओवर हाइप्ड है ये क्वेश्चन, क्योंकि जब वो प्रेपरेशन वाली बात आती है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो मतलब गैप ईयर्स मेजरली लोगों के रहते हैं, एंड इट्स फाइन टू हैव देम। और मतलब जस्टिफाई करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन देना है। Mm-hmm. तो मतलब सबको पता है पढ़ रहे हैं, एंड इट्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, मतलब गिविंग आफ्टर गिविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ हार्ड वर्क टू सर्टेन एग्जामिनेशंस, इट इज ऑल बेस्ड ऑन लक एंड फॉर्च्यून। तो मतलब इतना मेजर इशू रहता नहीं है कि गैप ईयर्स का क्या किया, तो उसका मेरे को लगता है इतना लोड लेने की जरूरत होती नहीं है। तो इट्स फाइन, यू नो, जस्ट लुक फॉरवर्ड। इंटरव्यू तक पहुंच गए हो, बस उसको अच्छे से करो, मतलब हम्बल रह के सीधा सीधा आंसर करके, आई थिंक दैट विल वर्क फाइन फॉर यू। So what was your experience with the board? द बोर्ड वॉज वेरी सपोर्टिव, इंटरव्यू काफी स्मूथ गया था। और मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता था, मैंने बहुत जगह सॉरी सॉरी करा कि सॉरी आई रीड अबाउट इट, सॉरी यू नो आई रीड मोर अबाउट इट, ऐसा ऐसा करके मतलब काफी टाइम सॉरी बोला। सब कुछ नहीं आता था सर, तो इट्स फाइन, मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव। उसमें भी मतलब जो बोर्ड मेंबर्स थे, पैनल मेंबर्स थे, वो मुझे वापस समझा रहे थे उसी टाइम बैठ के कि नहीं नहीं ये ऐसा होता है, नहीं नहीं ये ऐसा होता है, मतलब काफी सपोर्टिव वे में। और तो मैंने भी काफी अच्छे से उसे लिया, समझा, और फिर मतलब बस सॉरी कह के सुन के अच्छे से, यू नो, द मैटर एंडेड देयर। कुछ चीजों के आंसर कर दिए, तो बस यही था सर, मतलब काफी स्मूथली गया था। जस्ट दैट जो तुम्हें पता है वो अच्छे से बता दो कॉन्फिडेंटली, जो नहीं पता है वो एक्सेप्ट कर लो, काफी होता है सर उसके लिए। तो आई थिंक इंटरव्यू में दो टाइप के इंटरव्यू रहते हैं, तो मैं भी उस टाइम सोशल मीडिया का मैंने यूज करा था, टेलीग्राम का। तो उस टाइम लोग डिस्कस करते थे कि हमारे एक्सपीरियंसेस क्या थे। तो कुछ लोगों के होते हैं एचआर बेस्ड क्वेश्चंस के, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, इस टाइम क्या किया, या ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। और कुछ होते हैं वो मेरिट बेस्ड वाले, एकेडमिक या तुम्हारे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे। तो मेरा फेल इनटू द लैटर पार्ट कि डिटेल्ड एप्लीकेशन, मतलब जो मैंने सीवी टाइप बना के दिया था, उससे मेरे क्वेश्चन ज्यादा थे। तो सर उसमें वही जो मुझे आता था मैंने आंसर किया, उसके भी मैंने अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग नोट्स उसके बना के लेके गई थी। सुबह सुबह जब वेट कर रहे थे, एक टाइम गेट पे वेट करना था, एक टाइम ऊपर जाके वेट करना था, तो आई वाज कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू दोज नोट्स कि ये बोलना है, ऐसे ही करना है, बस रिविजन। एक जनरल क्वेश्चन मैं सभी सब्सक्राइबर जो रहे हमारे क्रैक ग्रेड बी के उनसे पूछता हूँ कि इतना कंपटीशन है, मार्केटिंग है, एग्रेसिव मार्केटिंग भी है। सो व्हाई डिड यू चूज क्रैक ग्रेड बी? मतलब ऐसा क्या लगा कि आपको क्रैक ग्रेड बी ही चूज, आपने क्रैक ग्रेड बी ही चूज किया? तो क्रैक ग्रेड बी का मुझे कंटेंट काफी अच्छा लगा था। मतलब कंटेंट काफी इनफ होता था, और मतलब एक क्वालिटी लेवल का होता था। तो मैंने सेबी लीगल के लिए सबसे पहले रेफर किया था, तो रेगुलेशंस काफी अच्छे से कराई हुई थी, और सपना मैम बहुत अच्छे से कराती थी। तो मतलब आईआरडीआई के लिए व्हेन आई न्यू कि आप निकाल रहे हो कोर्स, तो आई हैड नो डाउट, और मुझे पता था मुझे यहीं से पढ़ना है, इन्हीं का ही कंटेंट देखना है, तो आई वाज कॉन्फिडेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट सर। Okay, so any advice for the future aspirant? सर एडवाइस में बस यही है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। बाकी सर ज्यादा लोड लेके नहीं करना होता, मुझे लगता है कि जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और जो 10-15 दिन है बस वो लगा दो, मेंस मैटर करता है। फेज 1 अगर आरबीआई के लिए सीरियस एस्पिरेंट हो तो निकल जाना चाहिए। दो आई डोंट नो अभी आगे आने में कितना कंपटीशन रहेगा क्या,
लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, वही है, वही अलग अलग मॉक्स प्रैक्टिस करो अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी के। तो जस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव माइंडसेट कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा एंड फॉलो दैट। कंसिस्टेंसी की है। एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन में अगेन यू हैव 6 to 7 months लिमिटेड टाइम, तो उसमें लगा दो सारी जान और और मतलब कर जाओ वन बस। एग्जाम पे भी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब देखो सपोज IRDA अभी 6 साल 7 साल के बाद आया, 2017 में आया, अब नेक्स्ट ईयर आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं कंफर्म। तो मल्टीपल एग्जाम्स के कई स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा कि सिर्फ RBI को टारगेट करते हैं, अदर रेगुलेटरी बॉडीज को में नहीं ट्राई करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो अनएम्प्लॉयड है एटलीस्ट उसे ट्राई करता रहना चाहिए अदर एग्जाम्स में। हाँ सर, एज आई सेड IBPS है वो कंडक्ट करा रहा है, सेम हम्म। एग्जाम पैटर्न है, डिफिकल्टी मैक्सिमम चेंज होगा। तो अगर दो एग्जाम के बीच में 10-15 दिन भी मिलते हैं या एक वीक भी मिलता है, आई थिंक इट इज हम्म। इनफ टू रीओरिएंट स्ट्रैटेजी दूसरे एग्जाम के लिए। तो वो काफी इजीली कर सकते हैं, तो ये करना ही चाहिए मुझे तो लगता है। अगर RBI के लिए कर रहे हो तो यू हैव सो मेनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। IRDAI इज अगेन अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। RBI है बट मतलब बाकी सारी रेगुलेटरी बॉडीज आर ऑल्सो कमिंग अप, और मतलब काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन हम्म। सर्टन सेंस, बेटर। और न्यू है, मे बी नॉट मेनी पीपल आर अवेयर, तो अप्लाई तो करना चाहिए और जाके बैठना चाहिए मुझे तो लगता है फेज 1 में। तुम्हें अगर 1 घंटे पहले भी लग रहा है यू आर नॉट रेडी, जाके बैठ बैठ जाओ और दे आओ बस। एंड वही निष्काम कर्म जो होता है, जस्ट डू योर पार्ट, रिजल्ट आएगा आएगा, बाकी आगे बढ़ते रहो। सो thank you, Shruti, for this wonderful session. And I think this will definitely help future aspirants if IRDA comes next year. So thank you for joining the session, and I wish you good luck for your future journey at IRDA. And थैंक यू सो मच। again, many congratulations for your achievement. थैंक यू।